अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम मस्तम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज तो मैं क्या ही ख़बरें दूँ, क्योंकि सबको जिस खबर का इंतज़ार है और जिस खबर पर सबकी नज़र है, जिस मैच पे सबकी नज़र है, उसमें अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। पूरे इंग्लैंड में एक्साइटमेंट है, लोगों ने अपने प्लान्स बना लिए हैं। मुझे पूरा यकीन है 1 घंटे में आपको ट्रेन्स में ढूंढने से भी कोई लोग नज़र नहीं आएंगे। इतने कम लोग हो जाएंगे जिनकी मजबूरी होगी, सिर्फ वही सड़कों पर आपको दिखाई देंगे, बिकॉज एवरी वन इज़ एक्साइटेड फॉर द बिग मैच टुडे। उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन एक सियासी मैच जो जारी है उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें एंडी बर्नहम जो हैं वो फाइनलिस्ट हैं और वो अकेले ही हैं, अकेले फाइनलिस्ट हैं तो वही जीते हुए हैं। तो उनके हवाले से तो बात होगी, लेकिन कियर स्टारमर जिन्होंने आज पार्लियामेंट में एज प्राइम मिनिस्टर सवालों जवाब का जो सेशन था उसको आखिरी बार एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एड्रेस किया, जो भी सवालात उठाए गए और फिर सबने उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। इमोशनल मोमेंट्स भी थे, सब कुछ था। आज के खिताब उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्या क्या बातें हुई, क्या सवालात पूछे गए, उनका क्या जवाब था। सबसे पहले इसी से शो का आगाज़ करते हैं, फिर अमेरिका में जो आइस की कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर भी बात होगी। फुटबॉल की तो डेफिनेटली आज बात होगी। US ईरान उनका मसला कितना कशीदा हो चुका है या उसमें दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने कोई यू टर्न ले लिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर। Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. In 6 years, went from historic defeat in 2019 to historic victory in 2024. And in 2 years in government, I leave the country in better shape than I found it. I am proud of everything that we have achieved. But, Mr. Speaker, I will give my wholehearted support to my successor. I want this Labour government to be a success. I want our country to be a success. I shall give my support privately if asked for, not publicly when not asked for. Not the leader of the opposition. Week after week, the Prime Minister and I have clashed at this dispatch box and rarely agreed on anything. But there is one thing I did admire. When President Zelensky was attacked in the White House, the Prime Minister showed leadership and invited him to Downing Street. That was the right thing to do. Ukraine is on the front line in the battle for freedom. So does the Prime Minister agree that cross-party support for their cause must endure? Prime Minister. Can I start by joining her in a tribute? That meeting with President Zelensky, the day after he was evicted from the Oval Office, he left alone. He got a plane. We got him to come to London, and I asked him to come to Downing Street straight away. And I walked out to meet him. I gave him a hug, and then I showed him what was in the street, which was many people who had come thinking that he was visiting Downing Street, and the moment he got out the car and hugged me, they cheered on the top of their voices, the British people, to tell President Zelensky exactly what they thought of him and the way that he had been treated. And that was a really emotional moment because it was the first human contact he had effectively had outside of his immediate team since he left the Oval Office. I had a meeting with him to tell him that in this country we will stand with him and Ukraine, and I didn't let him leave alone. I walked him out to his car because we don't let people in Britain walk out of our buildings alone. We escort them out. But one politician intends to spend the summer avoiding scrutiny, refusing to set out his plans. So does he not agree that what the country deserves is a televised debate between Nigel Farage and Count Binface? Prime Minister. They intend to spend the summer arguing with the bin. My advice to everyone is put your vote in the bin. And I know how much his wife and children mean to him, and that they are in the gallery today. As everyone here knows, our families make a huge sacrifice for our choice to enter public life. So I hope he will allow me to draw our time together to a close by thanking them for the love and support they have given him
throughout his time in office. Prime Minister. We have had robust exchanges across this dispatch box, but she has extended kindness to me privately at very difficult times, including when there was an attempt to burn down our family home, which deeply affected my family. She reached out to me. And when my brother died of cancer, she reached out to me privately, not across this dispatch box. And I thank her for that and the tribute that she's just made to my wife and children, who mean the world to me. To my colleagues on these benches, I am proud of all we have achieved together and proud of each and every one of you. To my successor and each of you, I will give my full support. To all colleagues across the House, can I wish you good health and happiness? To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye. जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर, उन्होंने अपने कलीग्स के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए आखिरी पैगाम दिया। सबने उनको अपने भी जो सेंटिमेंट हैं उनका इजहार भी किया गया, थोड़े से इमोशनल भी दिखाई दे रहे थे। और आज तो जो अपोजिशन है वो भी उनसे ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सख्त सवाल कर रही हो, बल्कि उनकी तारीफ़ भी की गई और बड़ा अहम नुक्ते पे उनकी तारीफ़ की गई कि जब यूक्रेन के जो सदर हैं वाइट हाउस में उनको डोनाल्ड ट्रंप के जो चुभते हुए सवालात थे और अजीब व गरीब किस्म का रवैया उसका सामना करना पड़ा, तो ये केयर स्टारमर ही थे जिन्होंने उनको बरतानिया दावत दी और यहाँ पर उनके साथ अपनी जो मुकम्मल सपोर्ट थी उसका इजहार भी किया। और यूरोप जो था वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दिया जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को डांट रहे थे। इसी पे बात करेंगे, हमें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा शफीक ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा। बताइए किस तरह से ये जो तब्दीली है और इतनी स्मूथ तब्दीली है कि एज अ पाकिस्तानी मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री लेबर को मिली, एक वज़ीर आज़म, एक लीडर जिसकी वजह से मिली या जिसकी लीडरशिप में मिली, वो इतनी खामोशी से जा रहा है। क्योंकि एज पाकिस्तानी मैंने ये जो डेमोक्रेसी का रंग है ये विटनेस पाकिस्तान की हद तक तो नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया नीलम आपका। मेरा ये ख्याल है कि ये लेबर पार्टी की बहुत बड़ी फतह थी जिसमें केयर स्टारमर ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और 412 नशिस्तें लेबर पार्टी ने पिछले आम इंतखाबात में जीती थी। लेकिन ये जो यहाँ पे पावर का ट्रांजिशन है या एक वज़ीर आज़म का आना है, दूसरे वज़ीर आज़म का जाना है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। सिवाय जो है वो बोरिस जॉनसन के किसी के अंदर भी कोई बहुत बड़ा मसला पैदा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी का फ्लिप साइड देखें कि 5 साल के अंदर 5वां वज़ीर आज़म इंस्टॉल होगा और 10 साल के अंदर 7 वज़राए आज़म इस जमहूरियत की भींट चढ़ चुके हैं, अगर मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब ये है कि जो जमहूरियत को डिलीवर करना चाहिए था, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, जो स्मूथ रन ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए था, वो भी नहीं हो सका। और ये 7 वज़राए आज़म कोई 7 मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से नहीं आए, बल्कि 2 मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से 7 वज़राए आज़म आ जाएंगे सितंबर तक। तो इस हवाले से तो अच्छा है कि यहाँ पे कोई भौचाल नहीं आता, जिस किस्म की पाकिस्तानी सियासत में उखाड़ पिछाड़ होती है उस किस्म की नहीं होती। लेकिन जो वज़ीर आज़म का आना और जाना है वो पाकिस्तान की तरह ही है कि जहाँ पे कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता। डॉक्टर उसामा, अगर आपने केयर स्टारमर का जो ये टेन्योर था इसकी हाइलाइट्स आपने बयान करनी हो या वो मोमेंट्स जो आपके लिए इम्प्रेसिव रहे तो वो कौन से होंगे? सबसे पहली चीज़ तो केयर स्टारमर की जिस चीज़ पर उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने लेबर को एक बहुत बड़ी फतह से हमकिनार किया, 412 नशिस्तें। दूसरी बात यह कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपने मफादात को सिक्योर करने की कोशिश की, यानी कि बरतानिया के मफादात को सिक्योर करने की कोशिश की। वो किसी गैर
मुतल्लिक़ा जंगों में नहीं उलझे, वो ईरान के ऊपर हमले के अंदर अमेरिका के साथ नहीं गए, इसराइल के साथ नहीं गए, और यूक्रेन जो कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जिसके अंदर रूस से बरतानिया को सेव करना है, तो उसके ऊपर वो कंसिस्टेंसी से मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहे। दूसरी बात जो उनके क्रेडिट पे सबसे बड़ी बात यह है कि 108 साल के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया है, यानी कि वो बरतानिया कि जिसने फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दिया था और इसराइल को वहाँ पे लाके आबादकारी करके बसाया था, 108 साल के बाद उस फ़लस्तीन का नामो निशान या उसको बतौर मुल्क उन्होंने तस्लीम किया है। तीसरा मसला ये है कि उन्होंने इमिग्रेंट्स यानी कि जो बोर्ड क्रॉसिंग है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, उसके अंदर बहुत बड़ी कटौती की है, और ये एक तारीख़ी कटौती है जिसको क्रेडिट नहीं दिया जाता और बार बार इमिग्रेंट्स के हवाले से मुजाहरे होते रहे। तीसरी बात यह कि उन्होंने इकॉनमी के हवाले से ऐसे इक़दाम तो किए कि जिसकी वजह से इकॉनमी किसी ट्रैक के ऊपर आए, लेकिन बहरहाल एक बिगड़ती हुई रेल को और गाड़ी को ट्रैक पे लाना 2-4 दिन की बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें उनके क्रेडिट पे रहेंगी और इस हवाले से उनको याद रखा जाए। सही। एंडी बर्नहम के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने ये अभी तक उनकी प्रायोरिटीज़ में है कि वो जैसे पावर है वो वेस्टमिंस्टर से बाहर निकालना चाहते हैं, फिर कैंप ऑफिस की बात भी की गई आपके अपने शहर मैनचेस्टर में, उसके अलावा जो यहाँ के मसाइल हैं उसको प्रायोरिटाइज़ करने की बात की गई। आपको लगता है कि ग्राउंड तो उनके लिए सेट कर दी गई है, इतनी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट एमपीज़ की उनके पीछे है, तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि आप खुद मैनचेस्टर के शहरी हैं, यकीनन आपने उनका काम भी वहाँ पर देखा होगा। देखें, ये दावे तो बहुत ज़्यादा हैं डिसेंट्रलाइज करने के, लेकिन ये कोई इतना आसान अमल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इतना आसान अमल होगा, और अगर वो हो भी गया तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, भारत में उन वजूहत पर नहीं जाना चाहता। इसके लिए न सिर्फ उनको लॉ में अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी, बल्कि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लानी पड़े। दूसरी बात ये कि एंडी बर्नहम की जहाँ तक बतौर मैनचेस्टर मेयर उनकी कारकर्दगी है वो बुरी नहीं है, बल्कि अच्छी है कारकर्दगी, लेकिन कौमी सतह की सियासत के अंदर आके उसका रंग कुछ और होता है और कौमी सियासत का रंग कुछ और होता है। केयर स्टारमर एक धीमे मिजाज के पॉलिटिशियन थे, जबकि एंडी बर्नहम जो है वो धीमे मिजाज के पॉलिटिशियन नहीं है। वो बकौल उनके करीबी लोगों के वो अटैक के ऊपर अटैक करने की पॉलिसी के ऊपर अमल करेंगे और नाइजल फराज उनका पहला टारगेट हो। तो इसको अगर मैं देखूं तो शायद जो केयर स्टारमर जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सके वो शायद एंडी बर्नहम करने के लिए आएंगे, लेकिन बहरहाल ये कहना क़बल अज़ वक्त है कि वो किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जहाँ तक डिसेंट्रलाइज अप्रोच की बात है, मुझे ये लगता है कि ये दावे हैं लोगों को खुश करने के हवाले से, लेकिन इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई अमल दरामद हो पाएगा, और अमल दरामद हुआ भी तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एंडी बर्नहम जाएंगे तो ये चीज़ें तहलील हो जाएंगी। सही। एक और अहम सवाल डॉक्टर उसामा, जो कि आप सबसे ज़्यादा आई थिंक सूटेबल इंसान हैं जिनसे ये पूछा जा सकता है, गज़ा के ऊपर आपने देखा कि एंडी बर्नहम ने इस वक्त बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ नहीं दिए हैं सिवाय एक आधो का इंटरव्यू के, लेकिन अपनी सोशल मीडिया को वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एड्रेस करते हैं। वहाँ पे गज़ा से मुतालिक उन्होंने अपनी पॉलिसी का ऐलान भी किया, फिर लेबर की जो माजी में पॉलिसी रही है उससे भी ऐसा लगा कि वो अपने आप को डिस्टेंस में लेकर जा रहे हैं। आपको वाकई लगता है कि केयर स्टारमर से गज़ा के मामले में कोई गलती हुई? क्योंकि लेबर ने ड्यूरिंग कैंपेन जो भी बातें की हों, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना ये भी केयर स्टारमर का ही मतलब इनिशिएटिव था, जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर भी था। तो अभी एंडी बर्नहम किस मुख्तलिफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं? देखिए, वो तो एंडी बर्नहम ही बताएंगे कि वो क्या आने के बाद करते हैं, क्योंकि एंडी बर्नहम का बैकग्राउंड सोशलिस्ट ज़रूर है, ठीक है, और सोशलिस्ट जितने भी हैं वो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से नर्म गोशा रखते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड है वो एंजेलिना रेनर का है, जो उनकी मुतवक्के हरीफ हो सकती हैं। तीसरी बात जो जहन में रखने की है कि एंडी बर्नहम जिस हवाले से आए हैं उसके अंदर एक हवाला ये भी है कि जो केयर स्टारमर ने एक तो ईरान जंग में नहीं कूदे, दूसरे फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया, तो उसकी उनको कीमत भुगतानी पड़ी, अदा करनी पड़ी। तो एंडी बर्नहम इन दोनों चीज़ों के हवाले से भी अपनी पॉलिसी को वाज़े करने की ज़रूरत है, और गुज़िश्ता दिनों से उनकी वीडियोस जारी हैं कि जहाँ पे वो
ये फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके वो एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं माजी में। तो एंडी बर्नम का आना भी मेरा ख्याल में केयर स्टारमर को हटाना इसी बात की निशानदही है कि केयर स्टारमर को उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी गई है। तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि एंडी बर्नम ने जो कुछ कहा है वो उसके ऊपर कितना अमल दरामद करेंगे, क्योंकि लिप सर्विस कुछ और होती है और अमल कुछ और होता है। तो इसको अभी फ़िलवक्त देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त एंडी बर्नम जब आएंगे तो वो नहीं चाहेंगे कि जो लेबर पार्टी की सपोर्ट है, जो मुसलमानों के हवाले से सपोर्ट है, वो किसी तरीके से उसको वो अपने हाथ से जाने दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मुस्लिम वोटर हैं या सोशलिस्ट वोटर हैं जो भारत लेबर पार्टी से नाराज़ हैं, तो वो उसको भी केटर करने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, आज गालिबन आखिरी दिन था लीडरशिप कॉन्टेस्ट के लिए। अगर कोई सामने आना चाहता था, कोई नहीं आया, तो अब हम यही कह सकते हैं कि अनअपोज्ड एंडी बर्नहम वज़ीर आज़म बन जाएंगे बरतानिया के। आपको लगता है कि जो बाकी नाम थे, आपने एंजेला रेनर की बात की, वेस्ट रीटिंग भी थे, बहुत सारे नाम आए, अल खान्स के नाम, ये सारे नाम पीछे हटे हैं एंडी बर्नहम के लिए। क्या लेबर ने सही कैलकुलेट किया इस सूरत हाल को? क्योंकि एक इलेक्शन जीता था एंडी बर्नहम ने और सभी अपनी अपनी जगह इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन क्या उनका एक हल्के का इंतखाब इतना भारी या इतना लेबर को लगता है कि कैलकुलेशंस के लिहाज से इतना मजबूत था कि उसकी बुनियाद पे कोई उनके सामने आया भी नहीं अपोज करने के लिए? देखिए नीलम, मैंने तो पहले भी आपको ये बताया था पिछले प्रोग्राम में जब हमने बात की थी कि स्टेज जो है वो एंडी बर्नहम के लिए सजाया गया है। मैं माजरत कर लूँ क्योंकि मेरे पास कहीं मैं ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, तो कैमरा मैं हाथ से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो एंडी बर्नहम के लिए स्टेज सजाया गया था, तो एंडी बर्नहम ही को ही आना था। तो बेहतर ये हुआ कि लेबर पार्टी के बाकी लोगों ने उस प्रैक्टिस में नहीं किया कि लेबर के अंदर वोटिंग होती फिर 50% वोट लेते, क्योंकि जो स्टेज सजाया गया था वो एंडी बर्नहम के लिए था और एंडी बर्नहम को ही आना था। तो एंडी बर्नहम ही आएंगे, मैंने तो पहले भी कहा था। और अगर कोई उनको चैलेंज करने के लिए आता भी, जो बयान आए थे वो मेरे ख्याल से चैलेंज करने के लिए नहीं थे, बल्कि केयर स्टारमर को हटाने के हवाले से वो ज़्यादा बयान आप देखेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर लगेंगे आपको। तो स्टेज एंडी बर्नहम के लिए सजाया गया था, एंडी बर्नहम आ गए हैं, तो स्टेज पे जो बाकी अदाकार थे वो चले गए हैं और एंडी बर्नहम ही इस ड्रामे को अब इख्तिताम तक लेकर जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा शफीक, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन इस वक्त फ़ुटबॉल अपनी जगह, लेकिन जो सियासी मैच जारी है जिसमें दूसरी तरफ कोई फाइनलिस्ट है ही नहीं है, कोई हरीफ है ही नहीं है, उसके बारे में भी यकीनन लोग जानना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ बात करते हैं आइस की, यानी कि इस वक्त अमेरिका में जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट फोर्स है उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं जो इस वक्त क्वेश्चनेबल बनी हुई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं कि अब तक जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है इमिग्रेशन कवानीन में उन्होंने सख्तियाँ की हैं, इमिग्रेंट्स के लिए हालात साजगार वहाँ पर नहीं हैं। और ऊपर से आइस की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो मैंडेट आइस के पास है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो अथॉरिटी है अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रही, कोई उनकी एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। उनके जो डिटेंशन सेंटर है उसके हवाले से भी इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो कहती हैं कि बहुत सीरियस किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हो रही हैं। और तकरीबन अब तक आइस की कार्रवाइयों में 7 लोग अपनी जान से जा चुके हैं और मुख्तलिफ लोगों के बारे में वहीं पर जो मीडिया भी है, जो मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं, वो यही बता रही हैं कि उन 7 लोगों में से किसी एक पर भी आइस जो है वो सही तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि उनकी वजह से कोई ख़तरा था नक्स अमन का। बॉर्डर क्राइम की जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है, लेकिन बग़ैर किसी की केस किए, बग़ैर किसी को जो लीगल बैटल है उसमें जाए बग़ैर जब ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो दुनिया के किसी भी हिस्से में की जाएँ, क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। मुजाहिरों में लोग क्या कह रहे हैं, किस हद तक वहाँ पर खौफ है आइस की कार्रवाइयों की वजह से, दिखाते हैं आपको। My wife is Hispanic and afraid to drive. And here we have a Houston citizen that's been gunned down and nobody's doing anything about it. All of a sudden we've got these federal people coming in, unmarked cars, just plain clothing, can't tell who they are, it could be any thugs. Amazon sells the clothing. They wear masks, there's no identification.
and then they start using force and gunning people down. This is ridiculous. I don't know what they are going to do to me because I speak with an Hispanic accent and because I look the way I look. So I am terrified. Well, I mean, there's been senseless slaughter of innocent people. You know, ICE is acting as judge, jury, and executioner, and they're not even allowing the proper judicial process to go through, and this is unacceptable. Well, ICE is getting funded, our public money, to the tune of billions of dollars. They tripled the budget this year, and they continue to carry out terror against immigrants. And so the concern is that ICE needs to stop their reign of terror. ICE needs to be abolished. Everyone that stands for democracy, that's against racism, for the rights of the immigrant detainees and immigrants all over America, the Latino and immigrant communities must stand up and demand that Trump be removed from office. He is singularly responsible for all these fascist murders by ICE. जी हाँ, और अब से कुछ देर पहले ये ख़बर आई थी कि हुकूमत की जानिब से अभी मुसलसल मुजाहरों के बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो आइस को इख्तियार दिया गया है कि किसी की भी जो व्हीकल है, किसी की भी गाड़ी की तलाशी ले लेते हैं, उन कार्रवाइयों को रोक दिया जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट आती है कि इन कार्रवाइयों को ना रोका जाए। ये तो स्ट्रेंथ है आइस की, मतलब मुख्तलिफ शहरों में, सैन फ्रांसिस्को में हमने देखा, लॉस एंजलिस में, बॉस्टन में, ह्यूस्टन में, हर जगह आइस की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जो इमिग्रेंट्स हैं और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो मुजाहरे कर रही हैं और वो हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि ये जो बदमाशी आइस की जानिब से की जा रही है कि ख़ुद ही जज और ज्यूरी और ख़ुद ही एग्जीक्यूशनर भी बने हुए हैं, किसी को अपना जो केस है वो प्रेजेंट करने का मौका भी नहीं मिलता और लोग इनसे खौफज़दा हैं, लोग अपनी जान के लिए खौफज़दा हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो मशकूक हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा रही, किसी कानून के तहत इनकी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही और इनको ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की जो इजाज़त दी गई है मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से, उसको रोका जा सके। जिसके बाद ये फ़ैसला सामने आया कि जो इनका इख्तियार है किसी भी गाड़ियों की चेकिंग करना, गाड़ियों की तलाशी लेना, इसको रोका जा सके। लेकिन अभी ये ख़बर आई ही थी कि उसके चंद ही घंटे बाद जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि ये इख्तियार उनसे नहीं लेना चाहिए, ये तो उनका ख़ासा है और इसकी वजह से उन्होंने बहुत काम किया है और आइस को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। हमने ये भी देखा कि अभी एक साल में ही आइस का जो बजट है उसको 3 गुना ज़्यादा कर दिया गया है, उसमें इजाफा किया जा रहा है और जो फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं रोका जा रहा। अब से चंद महीने पहले यकीनन आपको वो वीडियो भी याद होगी कि जिसमें एक खातून को निशाना बनाया गया था और बाद में जो वीडियोस उससे मुतालिक सामने आई थी उसमें ख़ास तौर पर देखा जा सकता था कि उस खातून ने कोई मुज़ाहिमत ही नहीं की थी, बस आइस के वहाँ पे अहलकार पहुँचे, उन्होंने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, वो अपनी जान से चली गई और उसके बाद भी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ उठाई थी। लेकिन कुछ अरसे के लिए हमने देखा कि आइस की कार्रवाइयाँ उसमें एक हॉट ज़रूर आया या उसमें एक नरमी ज़रूर आई, लेकिन अब एक बार फिर से इन कार्रवाइयों में तेज़ी देखने से आ रही है और आइस के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि अवाम के टैक्सों से अरबों रुपए आइस को दिए जा रहे हैं और आइस इन रिटर्न क्या कर रही है, उसी आवाम के जो इंसानी हुकूक हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनका ख्याल भी नहीं कर रही है। तो इसी वजह से इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और आइस के जो इक़दामात है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त इमिग्रेंट जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दे रही हैं। लोग अपने अगर किसी के स्पाउस इमिग्रेंट हैं, किसी का पार्टनर इमिग्रेंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको जो लोगों के आम लोगों के ख़यालात थे वो भी सुनाए, उसमें वो कह रहे हैं कि वो उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। लोग इस वक्त गाड़ी नहीं चला सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते अकेले कि कहीं उनके रंग की बुनियाद पर, उनकी रेस या एथनिसिटी का अंदाज़ा लगाकर आइस की कार्रवाइयों में वो मारे ना जाए। इस तरह का खौफ का आलम बनाया गया, जबकि इसका असल मकसद ये नहीं था। 2003 में आइस का क़याम अमल में आया था, लेकिन जिस तरह से इसने कार्रवाइयाँ
डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद की हैं, शायद ही इससे पहले की गई हों, जबकि इसके क़याम का मकसद यही था कि क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोका जा सके और इमिग्रेशन और कस्टम्स जो कवानीन हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद कराया जा सके। लेकिन अभी आइस जो है वो सिर्फ एक खौफ की अलामत बनकर रह गई है और इसकी कार्रवाइयों से जो कीमती जानी ज़िया है वो तो हुआ ही है। 7 लोग पिछले 1.5 साल में अमेरिका जैसे मुल्क में हम ये कह सकते हैं कि मावराए अदालत मावराए कानून उनका कत्ल किया गया, उनको निशाना बनाया गया है, उनको अपना केस प्रेजेंट करने की भी मोहलत नहीं दी गई। एक ऐसे भी शख्स आए थे कि जिनके बच्चे के सामने उनको बेदर्दी से गिरफ्तार करके ले जाया गया था। तो ऐसी कार्रवाइयों में इस वक्त आइस मुलविस है और पूरी दुनिया में आइस की कार्रवाइयों से मुतालिक इस वक्त मुजाहिरे हो रहे हैं और इसको कंडेम भी किया जा रहा है। लेकिन आइस को सपोर्ट हासिल है इस वक्त तक तो वो डोनाल्ड ट्रंप की। मज़ीद आने वाले दिनों में भी इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ। स्टे विद अस।